Hello friends, today we are going to talk about the writing skill. Particularly we are going to talk about letter writing. So here is our topic called letter writing. So basically we are asked to have formal and informal. There are two types. One is formal and second is informal. So basically these are the two things that we can talk about, informal and formal. So if we talk about the formal, it's official. I would say it's a official letter that we are supposed to write. Moreover, if we talk about this informal, so these informal letters are to be written to friends, relatives, parents, I could say. So whosoever that is we are communicating with must be informal way of communication. So today we are going to talk about a format. I'll show you how these letters are being written. In class we'll talk about, and I give some assignments regarding these things also. But basically what we are supposed to do is like we'll go for the format first. We are supposed to see the format. Why? Because format are certain pattern that should be followed all the while. Are you getting the point? So that makes our topic very interesting. I would make this in a partition and listen. Today we are going to talk about the letter called, the first thing that we are going to talk about, order letter. Placing an order. It can be said like placing an order. Mind it well, already we have done two types of letter. As far as your 10th standard is concerned, you have studied the same topic in 10th standard. Previously, like before 1.5 months, we have talked about job application. Job application is one of them. I could say, yeah, iska hi topic. So it's one of them, job application. But today we are going to talk about special, that is letter and order letter. So what happens is sometimes we order something like, जैसे हमें कुछ जरूरत होती है. Nowadays it's a pure business on email, है ना? But still, people rely upon the traditionally written letters, because many years ago it is believed that you should have some authenticated. Like there are so many things happening. If we talk about email, it's like net can be like somehow it can be cheating or like हो सकता है. It आप email ID से कर सकते हो, and you can say no, I haven't sent an email. ये हो सकता है. That's why still now अभी भी है ना, ये फिजिकली लेटर लिखा जाता है. मतलब A4 साइज के पेपर के ऊपर मार्जिन छोड़ के लेटर लिखा जाता है ना. सो प्लेसिंग एन ऑर्डर, आई गिव यू द फॉर्मेट इन आवर क्लासेस. जैसे हम क्लास में पढ़ेंगे, आपको स्पेशली उसका एक सेशन रखेंगे और स्क्रीन शेयर करूंगा. दिस इज हाउ लेटर कैन बी रिटन, बट ओनली दिस लेटर कंटेन्स अ फॉर्मेट एंड दिस वीडियो लेक्चर कंटेन्स अ फॉर्मेट ओनली. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज लाइक ट्रेडिशनली अगर हम लोग लिखे तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आता है. So if I start this, तो यहां से लेटर की शुरुआत करते हैं. जो लेटर में पहले आता है सेंडर्स एड्रेस. सपोज इफ आई राइट सो एंड सो थिंग्स, तो इफ आई राइट माय नेम, है ना, माय लाइक A1 अक्षर बंगलोज एंड ऑल दैट. सो ये यहां पे हो जाता है, दिस इज सेंडर्स एड्रेस. Dear friends, if you forget to write the senders in examination, don't get worried. Most importantly, what we are supposed to have is to the book store, yeah, this and that. तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिख रहा हूं, लेटर ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ बुक्स.
है ना, स्टैंडर्ड वाइज हो सकती है, नॉवेल हो सकती है, व्हाट्स एवर यू लाइक। सो यहाँ बुक स्टोर, पेंगुइन या फिर पीवी पब्लिकेशन, और उसका एड्रेस, यहां पे एड्रेस आना चाहिए। This is very important because to whom we are writing should be mentioned. So this is why this is called receiver's address. Receiver's address. If you forget to mention the sender's address is fine, but what is needed is receiver's address. वो जरूरी है. Now, while when you write these things, you are supposed to leave a line. This is a symbol that you are supposed to leave the line particularly over there. And let us now move on the second point, that is subject. See, subject is very important thing that we are mentioning something. Like subject से ही पता चलता है कि what is this letter about, है ना। जैसे कोई भी हम रिसर्च लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उसके आगे हम लोग लिखते हैं सिनॉप्सिस। एक वर्ड है वोकैबुलरी में मैं यहां लिख लेता हूं, जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। वो सिनॉप्सिस क्या होता है कि इट्स अबाउट 2-3 पेजेस और इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज दिस होल रिसर्च अबाउट, क्या है ये रिसर्च, क्या है ये सब फंडा, तो उसके बारे में ये सिनॉप्सिस है। तो सब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ सिनॉप्सिस जो सारी कंटेंट को दिखा रहा है कि दिस इज व्हाट द कंटेंट इज ऑल अबाउट। सो सब्जेक्ट इज, तो जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स ऑफ, यहां डैश कर सकते, कोई भी बुक्स हो सकती है। इफ आई राइट, डैश के बाद कुछ भी लिख सकते हो, या फिर इफ आई राइट एकेडमिक्स, है ना, नॉन एकेडमिक्स, स्टेशनरी, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। सपोज मैं स्टेशनरी या फिर कुछ भी लिख सकता हूं, तो ये आना चाहिए एकेडमिक्स का, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू राइट ओवर हियर। एंड देन कम्स सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड या फिर ऑल द वाइल हम लोग एक और लिखते हैं, ओनली सर, सिर्फ सर भी लिख सकते हैं, ओनली सर, है ना, बिकॉज वी डोंट नो हु दैट पर्सन इज। तो अगर आप रिस्पेक्टेड लिखते हो तो गलत नहीं है। और दूसरा जो अभी फिलहाल मॉडर्न वे में हम कह सकते हैं, तो सिर्फ आप सर लिखो तो भी चलेगा। सो दिस ऑल्सो कैन बी डन आउट ऑफ वन, आउट ऑफ दिस ओनली वन शुड बी रिटन। आपको कोई भी एक लिखना है, सपोज सर लिखा, नाउ पैसेज नहीं लिख रहा, पैसेज में सब कॉमन आता है। जैसे कि सपोज आई एम ऑल्सो वर्किंग एंड आई एम हैविंग अ बुक स्टोर, तो मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ कि भाई आई एम रनिंग अ बुक स्टोर एंड आई नीड सर्टेन बुक एंड दिस एंड दैट। और इफ आई एम अ स्टूडेंट आई विल राइट कि भाई यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टडीइंग इन दिस स्टैंडर्ड एंड आई जस्ट वांट दिस काइंड ऑफ बुक्स अराउंड दैट। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आई नीड दिस बुक। If I say I am a librarian, I am working in PP Sawan school, that I need certain books, these are the following orders, like this is the order of the book, so you are supposed to send. तो मतलब ये जो यहाँ पे जो लेटर पार्ट आएगा ना, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पैसेज आता है, फर्स्ट पैसेज दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि व्हाट आर यू एंड व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर। सेकंड में आपको लिखना है व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड मतलब आपको ये लिखना है कि बुक्स कितनी चाहिए, क्या चाहिए। अब यू आर सपोज टू मेक अ टेबल फॉर्म, जैसे कि सीरियल नंबर, बुक्स नेम, पब्लिकेशन, क्वांटिटी एंड या अमाउंट, डिस्काउंट, या फिर आप कुछ और ऐड कर सकते हो, है ना, एडिशन। दिस इज हाउ यू कैन राइट अ फॉर्मेट। जैसे आपको ये बुक मंगवानी है, मैं यहां पे एक बुक लिखता हूं, सपोज आई नीड हु विल क्राई व्हेन यू डाई, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, बराबर है। It is written by, it is one of my best book I have ever read. Publication, if you don't know publication, चलेगा।
पेंगुइन पब्लिकेशन भी बहुत फेमस है. यू डोंट नो, देन क्रॉस इट. क्वांटिटी, आई नीड 2 बुक्स, है ना. एडिशन यू कैन से कोई भी चलेगा, तो या करंट लिख सकते हो, करंट एडिशन और करंट, या फिर यहाँ ईयर भी लिख सकते हो, जैसे कि 2016 या 17 या 18, क्योंकि नॉवेल जो होती है वो पब्लिकेशन ऐसा बार बार नहीं होता उनका. तो आप यहाँ पे ऐसे लिस्ट बना सकते हो. तो आप यहाँ क्या मेंशन करते हो कि फॉलोइंग इज माय रिक्वायरमेंट. आप ये सेकंड पैसेज भी लिखते हो, है ना. और दिस इज हाउ, मैंने एक ही बुक का लिखा है. यू कैन एड एज मच एज यू लाइक, बट मिनिमम 5 बुक्स दैट शुड बी एनलिस्टेड ओवर हियर. 500 बुक आपको लिखनी है. देन आपको लास्ट थर्ड पैसेज लिखना है. थर्ड पैसेज is all about, I hope that you will deliver on this particular address and this and that, और आप पेमेंट के बारे में, मतलब ये डिपेंड नहीं करता आप क्या यहाँ पे लिखते हो. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मुझे इतनी बुक चाहिए, मैं ये लिस्ट है, दिस इज हाउ यू कैन राइट. बट डजंट मैटर that what you are writing in this passage, but what matters is what you are ordering. This is the format that we are all supposed to follow. Fine. और थर्ड पैसेज के बाद you can write like सब्सक्रिप्शन लिख सकते हो कि yours sincerely, whatever the name that आपने लिखा है ना. That this is how you can write. But out of this all points, सब traditionally लिखा है, सब everything is traditionally. But what mentioned and what is important part is the table format of order. ये जरूरी है. अब यहाँ पे ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, वॉट ऑर्डर्स यू कैन प्लेस इज एनीथिंग यू लाइक. लेकिन ये सब बदल जाता है. ये जो मार्क किया ये पब्लिकेशन, क्वांटिटी, एडिशन. सपोज मुझे कुछ स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो मैं लिखूंगा कि मुझे वॉलीबॉल चाहिए, 3 टेनिस बॉल चाहिए, या फिर बैट्स चाहिए, टेबल टेनिस चाहिए, उसका जो मतलब वॉट एवर द इक्विपमेंट दैट यू आर प्लेइंग विथ. तो ये सारी चीजें जो होती है आप मेंशन कर सकते हो, है ना. यहाँ पे वॉलीबॉल की नेट आप मंगवा सकते हो. एवरीथिंग स्पोर्ट्स क्लास में आप जो मंगवाना सकते हो वो मंगवा सकते हैं. तो दैट शुड बी एनलिस्टेड ओवर हियर. ये एक पार्ट हो गया. बुक वाला जो पार्ट हो गया, तो ये बुक्स है तो उसका भी एक पार्ट हो गया. देयर आर सो मेनी थिंग्स, वॉट एवर थिंग्स दैट यू नीड. सपोज यू आर लिविंग इन अंकलेश्वर, जीआईडीसी और समवेयर, एंड यू आस्क फॉर अ ग्रोसरी शॉप एंड यू कैन इवन राइट लेटर्स. अब ऑब्वियसली अब ये जमाना नहीं आ रहा, लेकिन दैट कैन बी लाइक वन ऑफ द टॉपिक. वो हो सकता है कि भाई ग्रोसरी शॉप से आप कुछ मंगवा रहे हो, है ना. अभी भी लोग, अब तो एप्लीकेशंस आ गई है, वी कैन यू नो सर्व द थिंग्स एंड वी कैन बाय ऑनलाइन. बट दिस इज हाउ इट कैन बी, है ना. सो दिस इज व्हाट द होल लेटर इज. मैं यहाँ से थोड़ा ऑफ कर यहाँ से निकलता हूं ताकि आपको ये पूरा स्क्रीन दिखे एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. थैंक यू वेरी मच.